Hello dear students, good afternoon to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Farming System and Sustainable Agriculture, and course number is Agro-5222. So our today's topic is allied enterprises and their importance. So we'll discuss about the allied enterprises. Okay, so let us start. Okay, yes, in our previous lecture, we had already seen some, allied enterprises like dairy, poultry, goat and sheep, then some agroforestry, mushroom cultivation, poultry, dairy, then apiculture, fishery, duckery. Some these are the allied sectors instead of our agriculture or as well crop production. Okay, so these are the sectors. Okay, so we have some different sectors, like we'll discuss about that crop production and dairy farming, goat and sheep rearing, piggery, poultry, duck rearing, and then apiculture, fishery, sericulture, and then mushroom cultivation, also agroforestry and biogas. So these 12 sectors are there in this particular lecture, and we'll discuss in detail. Okay, and their importance, how they apply, how they execute in our farming system also. Okay, so let us see. We take first one, which is crop production. So crop production, as we all know, क्रॉप प्रोडक्शन मतलब हम सब जानते हैं कि क्रॉप का प्रोडक्शन करना, पर्टिकुलर कल्टीवेशन प्रोसेस करना, दैट इज कॉल्ड द क्रॉप प्रोडक्शन. एज सिंपल इज दैट. ओके, सो क्रॉप प्रोडक्शन इज एन integral part of farm activities in the country. Cropping system based on climate, soil and water availability have to be evolved for realizing the potential production level through efficient use of available resources. ओके, सो क्रॉप प्रोडक्शन एक ऐसी एक्टिविटी जो हमारे पूरी कंट्री में एक इंट्रीगल तरीके से चल रही है. एंड देन क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है कि कैसा है सॉइल, क्लाइमेटिक, वाटर की क्या रिक्वायरमेंट है, वाटर की क्या रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है, उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, और कैसा वहाँ पे एफिशिएंट यूज़ है किसी भी चीज़ का, रिसोर्सेज का, या वहाँ पे डिमांड कैसा है उस एरिया पे, उस पर डिपेंड करता है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन. ओके, सो वी हैव सम different types of crop, like earlier I discussed in cropping pattern and cropping system. So again we'll discuss in very brief. Okay, because I hope you all know about that particular cropping system, which is sequential cropping system. We all know about that because हमने पहले ही बहुत काफ़ी ज़्यादा इसका डिस्कशन करा हुआ है. ठीक है, so there is no need to again explain this particular system. So in sequential cropping system, we have some kind of another cropping system like rice based cropping system, then sorghum based cropping system, pearl millet based cropping system, wheat and gram based cropping systems. Okay, मतलब sequence में हम according to the area, according to the soil and water availability, हम क्या करते हैं, sequence में cropping system apply करते हैं, right? Then the second thing is multi-tier cropping system. Okay, so the practice of growing different crops of varying height, rooting pattern and duration is called multi-tier cropping or multi-stored cropping system. Okay, मतलब अब हम एक ही सेम पीस ऑफ लैंड में जब अलग अलग हाइट रखने वाले जब पौधे लगाते हैं, that is called the multi-tier cropping system. Like in our wheat cultivation or wheat production, we have some put some rows like mustard crops. ठीक है, हमें कुछ मस्टर्ड क्रॉप्स को भी लगाने होते हैं एक रेशियो में. दैट इज वी नो दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज कॉल्ड द मल्टी टियर क्रॉपिंग सिस्टम. वाई? क्योंकि क्रॉप जो वीट है, वीट का जो हाइट है वो कम होता है एज कम्पेयर टू मस्टर्ड हाइट. ओके, तो दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज कॉल्ड द मल्टी टियर क्रॉपिंग सिस्टम, जिसमें हम रो बेस्ड क्रॉप्स लगाते हैं रेशियो के अकॉर्डिंगली. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द water availability. Okay, so these are the crop production. Okay, so this is not the allied sector in farming system. This is the core sector. We can say that this is a core enterprises for our farming system. ठीक है, मतलब ये एक बहुत ही important और main enterprise है हमारे farming system में. ठीक है, crop production. And the second is dairy farming. So dairy farming is an important source of income to farmers. Besides producing milk and or draft powder,
ड्राफ्ट पाउडर हो गया है, वो ड्राइव पावर है, दैट इज कॉल्ड द, ठीक है। मतलब जो हम जो ऑक्स लेते हैं, बैल जो लेते हैं, ठीक है, फॉर द प्लॉइंग प्रोसेस, फॉर द अनदर प्रोसेस, ठीक है, सॉरी पर्पसेस, फॉर द प्लॉइंग पर्पसेस एंड अनदर पर्पसेस, दैट इज कॉल्ड द ड्राफ्ट, that is not the powder, that is the power also. Okay, so the dairy animals are also good source of farmyard manure, which is good source of organic matter for improving soil fertility. The farm byproducts in turn are gainful utilized for feeding the animals. ओके, सो डेयरी फार्मिंग हमारे मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ अलॉन्ग विथ मिल्क प्रोडक्शन, दैट इज provide the draft power, and also they could be provide the some organic matters and and to improve soil fertility. ओके, सो ये सारी जो चीज़ें हैं फार्म यार्ड मैन्योर जो हम प्रोड्यूस करते हैं थ्रू दी डेयरी एंड कैटल, जो उनके वेस्टेज होते हैं उनसे, ठीक है, तो ये जो होता है एसेंशियल है। हम कह सकते हैं कि मिल्क के साथ साथ बहुत ही सारे इनकम जनरेट करता है डेयरी फार्मिंग, ठीक है। सो इन डेयरी फार्मिंग वी हैव टू डू सम कैटल रेयरिंग, मतलब हमें क्या करना होता है, पालन करना होता है कैटल्स का, ठीक है, रेयरिंग करना होता है। सो कैटल रेयरिंग इन इंडिया इज कैरिड आउट अंडर अ वैरायटी ऑफ एडवर्स क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस. The cattle are broadly classified into 3 groups. Okay, so cattle farming करना मतलब अलग अलग पर्पस से हम कैटल का फार्म करते हैं, मतलब पशुपालन करना, ठीक है। पशुपालन करना हमारा पर्पस अलग अलग होता है पशुपालन करने का, राइट। क्या पर्पस होता है, मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए, मीट प्रोडक्शन करने के लिए, या फिर हम फार्म यार्ड मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर्स भी लेते हैं उनसे, या फिर अनदर हम जो उनसे टिलेज ऑपरेशंस कराते हैं, देसी प्लाऊ चलवाते हैं, ठीक है। सो ये सारे जो बुलक कार्ट्स जो होते हैं वो हमारे ऑक्स से चलते हैं, ठीक है, ये बुफेलोज से चलते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं हमारे फार्मर्स को, ठीक है, वो किस में होता है, डेयरी फार्मिंग में होता है। सो वी हैव 3 ग्रुप्स फॉर कैटल, विच इज़ ड्राफ्ट ब्रीड्स, डेयरी ब्रीड्स एंड ड्वेल पर्पस ब्रीड्स। ड्राफ्ट ब्रीड्स से समझ आ रहा है हमें कि जो भी हमारे बुलक्स हैं, ठीक है, या जो हमारे बुफेलोज हैं, काऊ हैं, ऑक्स हैं, ये जो होते हैं वो पावर एज अ हम किसी काम के लिए यूज़ करते हैं, पावर के लिए यूज़ करते हैं। सपोज हम प्लॉइंग कर रहे हैं बुलक कार्ट में उनको ऐड करके, ठीक है, मतलब बैलगाड़ी में उनको ऐड के हम प्लॉइंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक हो गया ड्राफ्ट ब्रीड्स। दैन डेयरी ब्रीड्स मतलब जिनसे हम मिल्क लेते हैं, मिल्क प्रोडक्शन करते हैं जिनसे हम, ठीक है, तो वो हम किस कैटेगरी में आएंगे, डेयरी ब्रीड्स की कैटेगरी में आएंगे। दैन द डुअल पर्पस मतलब दोनों करते हैं, हम मिल्क प्रोडक्शन भी लेते हैं और उनसे काम भी होता है हमारा, वर्क में भी हम उनको आपस में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 टाइप के ब्रीड्स हमारे अवेलेबल होते हैं, तो ड्राफ्ट ब्रीड्स में क्या होता है, द बुलक्स ऑफ दीज ब्रीड्स आर गुड ड्राफ्ट एनिमल्स बट द काउज आर पुअर मिल्कर, मतलब वो सिर्फ हम उनको वर्क के पर्पज से उनका पालन करते हैं, कैटल की रेयरिंग करते हैं, राइट। सो देयर आर सम एग्जांपल्स फॉर द ड्राफ्ट ब्रीड्स विच इज खिलियारी, नागौरी, हलीकर एंड माली. This is very important example. You need to remember that particular examples. Okay, this is must for our exams point of view. आपको ये एग्जाम में ऐड करना पड़ेगा अगर हमारे क्वेश्चंस में आता है कि अलाइड सेक्टर्स आपको लिखने हैं या बनाना है, राइट। एंड देन सेकेंड इज डेयरी ब्रीड. सो द काऊ आर हाईली मिल्किंग ईटर. डेयरी ब्रीड से मतलब हमने उसको मिल्क प्रोडक्शन के ही पर्पज से उनकी रेयरिंग की है, उनका पालन किया है, ठीक है। So there are some examples. Sahiwal, Red Sindhi and Gir is a very good, they are the very good quality, produce very good quality of milks also. Okay, then the dual purpose में दोनों प्रकार के जब हम बुलक्स जो हैं वो कार्ड में भी हम उसको यूज़ करते हैं फॉर द ड्राफ्ट वर्क कैपेसिटी के हिसाब से, एंड देन वो गुड मिल्कर भी होते हैं, अच्छे मिल्क प्रोवाइड भी करते हैं. सो देयर सम एग्जांपल पर थारपरकर एंड हरियाणा, ओंगलू एंड दियोनी. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फॉर ड्वेल पर्पस ब्रीड. ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी कई बार पूछ लेता है कि ड्वेल पर्पस ब्रीड्स के एग्जाम्पल्स कौन से हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, सो लेट अस मूव द बुफेलोज. ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेयरी ब्रीड्स ऑफ बुफेलोज और मुर्रा. मुर्रा का नाम बहुत ही कॉमन है, हम सब ने सुना है कि मुर्रा जो ब्रीड है बुफेलो का बहुत ही क्या है, रिच है, वो बहुत बाहर का है. ठीक है, and then Nilli Ravi, which is very exotic varieties.
विच हैज़ इट्स होम टैक्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, एक्जॉटिक वेराइटी है ये, बाहर से आया है, मुर्रा एंड नीली रवि, ऑलवेज रिमेंबर। दैन द महसाना, महसाना जो है वो गुजरात की वेराइटी है। महसाना, सूरती, जाफराबादी, गोदावरी एंड भदावरी of these Godavari has been evolved through crossing local buffaloes in coastal region of Andhra Pradesh with मुर्रा। ठीक है, मतलब ये क्रॉस है कि गोदावरी जो है वो क्रॉस है एक लोकल बुफेलो का कोस्टल एरिया, कोस्टल रीजन में जो आंध्र प्रदेश है वहाँ के मुर्रा से जब क्रॉस कराया हमने तो गोदावरी ब्रीड्स जो है वो प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, जो कि बुफेलो है। तो आपको हमेशा याद रखना है ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो अगर आप याद रखते हैं तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी हमारा काम आता है, और एग्ज़ाम में अगर हम ये एग्जाम्पल्स ऐड करते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ओके, सो मुर्रा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रीड ऑफ बुफेलोज, ओरिजिन इज रोहतक, हिसर एंड सिंध ऑफ हरियाणा। ओके, सो नाभा एंड पटियाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द दिल्ली स्टेट। ठीक है, सो दिल्ली में ये साउथ पार्ट ऑफ द दिल्ली और पंजाब हरियाणा में मुर्रा का इम्पॉर्टेंट ब्रीड्स है वो वहाँ का। ठीक है, देन द सूरती इज ओरिजिन ऑफ कैरा एंड बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। So the peculiarity of the breeds is to wheat collar on the round the jaw। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम डिटेलिंग में वेटनरी साइंस में पढ़ेंगे, बट आपको ये जाफराबादी, सूरती, मुर्रा और महसाना विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, महसाना जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रीड है गुजरात की। ठीक है, साबरामती, बनस्कता, ये जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल होते हैं। तो ये डेयरी फार्मिंग जब हम करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है बस यहाँ पे कि आप जब डेयरी फार्मिंग करते हैं तो बुफेलो के ये ब्रीड्स होते हैं। आपको गोदावरी ब्रीड्स याद रखनी पड़ेगी जो कि क्या है, क्रॉस है। कोस्टल रीजन जो आंध्र प्रदेश में मुर्रा है उसका एक वाइल्ड से या जो एक लोकल बुफेलो है उससे जब क्रॉस कराए तो गोदावरी ब्रीड का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है। देन द नेक्स्ट इज गोट एंड शिप रेयरिंग, मतलब बकरी और भेड़ पालन करना। सो गोट रेयरिंग क्या होता है, इन इंडिया गोट इज मेनली रेयर्ड फॉर मीट, मिल्क, हेयर एंड स्किन। सो बेसिकली वी हैव टू रेयर फॉर द बेसिक टू रीजन विच इज प्रोडक्शन ऑफ मीट एंड मिल्क। ठीक है, मतलब मांस लेना और मिल्क प्रोडक्शन करना। बेसिकली इंडिया में हम दो चीज़ों के लिए करते हैं, बट हेयर्स और स्किन का भी हम आजकल क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जो चमड़ा या चपड़ा जो कारखाने होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे इनके जो हेयर्स हैं और स्किन है उसका भी यूज़ करते हैं। राइट, सो गोट मीट इज़ द प्रेफर्ड मीट इन द कंट्री। अ गोट ऑन हूफ, लाइव गोट, फैचेस अ बेटर प्राइसेस देन अ शीप ऑन हूफ। ठीक है, मतलब ये प्राइजेस से है रिलेट है, दैट इज़ कॉल्ड द गोट रेयरिंग। सिमिलरली शीप रेयरिंग मतलब शीप का पालन करना, भेड़ का पालन करना। सो ये बहुत सारे अलग अलग एरिया में अडॉप्ट किया हुआ है शीप का रेयर करना, पालन करना। जैसे पिगरी होता है, ठीक है, सूअर पालन भी करते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड, क्योंकि सूअर खाते हैं एज अ फूड, वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सो दे आर एक्सीलेंट ग्लीनर एंड मेक यूज ऑफ मच ऑफ द वेस्ट फीड। So they consume large quantity of rough, converting a relative cheap food into a good cash product. Housing need not to be elaborate and expensive. However, to protect the flock from predatory animal, the height of the fencing should be raised to the 2 meters। मतलब ये fencing का है कि आपको 2 मीटर के हाइट की फेंसिंग लगानी होगी। अगर आप ये रेयरिंग अपने फार्म हाउस पे या अपने फार्मिंग सिस्टम में ऐड करते हैं तो एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम में लिखने के लिए अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि शिप रेयरिंग क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि शिप रेयरिंग किस पर्टिकुलर एरिया में किया जाता है। एक दो एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कौन कौन से ब्रीड्स हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं फॉर द बेटर वूल प्रोडक्शन। ठीक है, मांस के साथ साथ ऊन का भी प्रोडक्शन करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया आपका शिप रेयरिंग। देन नेक्स्ट इज पिगरी। सो पिग्स आर मेंटेन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोर्क, मतलब लोग क्या करते हैं, पोर्क मीट खाते हैं, है ना, सुअर का मांस खाते हैं। तो that is the main main purpose for the production of the for the rearing of the piggery we can say। मतलब पिग्स का हम रेयर करते हैं तो वो पोर्क के प्रोडक्शन के लिए करते हैं ताकि हम सुअर का मांस खा सके। तो नॉर्थ ईस्ट साइड ये सारे प्रोडक्शंस जो हैं वो होते हैं। देन दे आर फीड विद द inedible feeds for a certain grain by products obtained for mills, meat,
byproducts, damaged feeds and garbage. Most of these feeds are either not edible or not very palatable to human beings. मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है इसमें, ठीक है। जो भी बचे खुचे जो भी सामान होता है, नॉन एडिबल पार्ट्स होते हैं, जो फॉरेजेस वगैरह होते हैं, वो हम इनको एज अ फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इनका इंपॉर्टेंट ब्रीड्स आपको याद रखना है। लार्ज व्हीट होता है जिसको यॉर्कशायर बोलते हैं, यॉर्कशायर जो बहुत फेमस ब्रीड है। एंड लैंड्रेस आर बीइंग वेस्ट यूज्ड वाइडली, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें से इम्पॉर्टेंट आपका यॉर्कशायर है, ठीक है। तो पिगरी का एक ब्रीड एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। देन आफ्टर वी हैव टू स्टडी लाइक पोल्ट्री. So some breeds are there. The specific poultry stocks of egg and broiler production are the available. मतलब अंडे के लिए और ब्रॉयलर प्रोडक्शन मांस के लिए हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं. सो इन ब्रीड लाइन्स ऑफ white leghorn to a limited extent other breeds like Rhode Island Red, California Grey and Australope are used. So basically ये सारे breeds हैं जो फॉरेन के exotic breeds हैं, ठीक है, जो हम पोल्ट्री प्रोडक्शन में करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड ब्रॉयलर. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर थिंग सम काइंड ऑफ ब्रीड्स ऑल्सो. नेक्स्ट इज डक rearing. सो डक आर प्रीडोमिनेंटली ऑफ इंडिजीनियस टाइप एंड रेयर्ड फॉर एग प्रोडक्शन, ठीक है. एग प्रोडक्शन के लिए हम डक rearing करते हैं अलॉन्ग विद द एपीकल्चर, अलॉन्ग विद द फिशरी, ओके, फिश प्रोडक्शन. On the natural foraging, they have a production potential of about 130 to 140 eggs bird per year. मतलब एक पक्षी पूरे साल में 140 से 130 से 140 अंडे देता है. सो डक्स आर क्वाइट हार्ड, मोर easily brooded and resistant to common avian diseases. So there are some breeds for the duck. Okay, so Shillette mate and Nageshwari are the very important breeds for eastern region of the country. इस पार्ट में जो है हम बर्ड डकरी रेयरिंग करते हैं और क्या करते हैं, शेलिट मेट एंड नागेश्वरी बहुत इंपॉर्टेंट आपका ब्रीड है जो हम क्या करते हैं डक रेयरिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि फेंसिंग कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से अलग अलग एंटरप्राइजेज जो आप ऐड कर सकते हैं हमारे फार्मिंग सिस्टम में, ठीक है. जो भी अलाइड एंटरप्राइजेज है जो आप एक्सिक्यूट, तो उसका एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि वो कैसे करते हैं, कौन से ब्रीड्स जो हैं हम ले सकते हैं फॉर दी एग प्रोडक्शन, फॉर दी मीट प्रोडक्शन, फॉर दी वूल प्रोडक्शन, ठीक है. जिस भी पर्पज से ले रहे हैं हम, तो उसमें कौन से ब्रीड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट्स हैं और किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट्स है. जैसे हमने देखा कि डुअल पर्पज़ में हमने काम भी लेना है बुफेलोज के, काऊ के, और मिल्क प्रोडक्शन भी करना है, राइट. तो सारे ब्रीड्स के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है. तो यू नीड टू रिमेंबर दिस ऑल दी एग्जाम्पल्स बिकॉज एग्जाम्पल्स आर मस्ट. ओके, सो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग जो और भी एंटरप्राइजेज हमारे रह गए हैं वो हम देखेंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी